Hello, everyone. Good evening. Am I audible to everyone? All good? Hi, good evening, everyone. Welcome to today's session. Before we all start, I just want to announce that Nivedita will not be speaking today. She has gotten severely ill all of a sudden, and uh, we'll have to reschedule her session. And we wish her her speedy recovery. Nevertheless, we begin the session today. I want to welcome our very special guest, Tejaram Ji, founder of Manthan Kotri. Before he introduces himself, I want to take the privilege. It's an honor to have him as one of our speakers in this series, and I just want to give a brief about him. As a founder of Manthan Kotri, which is an educational resource center, it addresses multifaceted issues such as education, water, health, gender, and livelihood. But that's not all. He has also been the voice of the people, especially from the grassroots communities, for more than 3 decades. His involvement in, hello, yeah, okay, I'll just continue. Um, His involvement in the Panchayati Raj exemplifies his dedication to participatory governance, evident through state level training and tenure as a village panchayat member and education Stat Samiti chairperson. His contributions have garnered recognition, including prestigious awards like the Mother Teresa Sadbhavna Award in 2016, and his tireless efforts in empowering marginalized communities have been reflected in all his work, you can say. His advocacy extends beyond local initiatives. He has represented grassroots voices on global platforms like Expo 2000 in Hanover, Germany, and on the sixth Global Forum on Reinventing Government in Seoul, Korea. With a profound belief in the inherent knowledge and dignity of every individual, Tejaram continues to champion education as the cornerstone of social transformation. So I end my case here. Let the man speak for himself and his word. Welcome, Namaste, Tejaram ji, from all of us. Please go ahead with the session. Namaste. Namaste ji. Yes, yes, please नमस्ते। continue. काफी सारा परिचय तो आपने दे ही दिया है। मेरा परिचय देने की जरूरत है नहीं। हाँ। हाँ, तो काफी सारा परिचय आपने दे दिया मेरा अच्छा सा, जो मैं भी नहीं जानता जो आपने परिचय दिया। फिर भी मैं एक छोटा सा अपना परिचय बताऊं कि मेरा नाम तेजाराम है और मैं छोटा एक गांव नलू है वहाँ का रहने वाला हूँ, और जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का एक छोटा गांव है, और वहीं से काम शुरू किया। और आज कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 20 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया था, तो वही छोटी छोटी कहानियां मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। Just request him to give us the presentation. Hi, can you enable it for presenting the presentation? Yes, sure. Gayatri, can you help with that? Yes, I did it. Yeah, you can enable. Yeah, we can access them. You can access. तो जैसे मैंने बताया कि मैं मंथन संस्था का एक फाउंडर मेंबर भी हूँ, और उससे पहले मंथन का शुरुआत से पहले मैंने 12 साल बैतूल पुलिस तिलोने में काम किया। लेकिन पूरा जिंदगी अनुभव जो है एजुकेशन से और यूथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी 20 साल
की उम्र में ये शुरू कर दिया था। तो आज मैं कुछ ऐसी कहानियां आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो पिछले 35 सालों में हमने युवा कम्युनिटी और उनके काम को लेकर के की है, वो थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। मंथन का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है या हमारा एक मेन सोच है, वो हम चाहते हैं कि सभी जो लोग हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है, एक दिन उनके पास एक सबके पास रिसोर्स होंगे और एक अपना एक अच्छा जिंदगी जिएंगे वो लोग। और क्योंकि एक जो बेसिक नीड है उनकी, पीने का पानी, एजुकेशन, लाइवलीहुड, रोजगार, इन सब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि मंथन 1998 में शुरू हो गया और जो लोकेशन है वो एक सामर सॉल्ट लेक के पास है, जहाँ ग्राउंड वाटर खारा है और सिर्फ बारिश के पानी पे लोग जिंदा रहते हैं। और ज्यादातर लोग जो है अ, अ, मजदूरी के ऊपर डिपेंड है। उनके पास खुद का, बहुत कम लोगों के पास खुद का लाइवलीहुड का वो तरीके सोर्स है। उन लोगों के साथ हम काम करते हैं। तो एक जो हमने 30 साल में देखा कि हमारे पास दो तरीके की दुनिया है। एक के पास जो है जरूरत से ज्यादा रिसोर्स है और एक के पास जो है बहुत कम रिसोर्स है, यानी बेसिक जरूरत जो चाहिए जिंदगी के लिए वो भी कम है। और इसमें बहुत बड़ा गैप है। और हमने ये महसूस किया कि युवा लोग इस गैप को कम कर सकते हैं, बशर्ते उनको एक रियल दुनिया का एक सही एक्सपीरियंस हो। तो पिछले 25-30 सालों में हमने यही कोशिश किया कि युवा लोग जो अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल एरिया में हैं, वो लोग कैसे रियल दुनिया से देखें और जो गांव के यूथ है वो भी थोड़ा सा दूसरी दुनिया को देखें, ताकि दोनों मिल करके, लोकल और बाहर के अच्छे प्रोफेशनल दोनों मिल करके इस गेम को कैसे कम कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ कि युवाओं के साथ हम शुरुआत कैसे करते हैं, क्या क्या चीज करते हैं जिससे कि युवा ये सब काम करने में सक्षम होते हैं। सबसे पहला देखिए, आप देख रहे हैं कि हम लोग इधर एक अच्छा सा उनका वेलकम करते हैं, लोकल उनके वेशभूषा, ड्रेस, कपड़े सारा पहना कर, ताकि वो थोड़ा सा इजी हो जाए। फिर थोड़ा सा हम अपने कानून कायदे के बारे में बात करते हैं। मंथन के क्या कानून कायदे हैं, किस तरीके से काम करता है, प्रोसेस क्या है, और कम्युनिटी की तरफ उनको क्या ध्यान रखना पड़ता है, कम्युनिटी का कल्चर, कम्युनिटी के वैल्यू, ताकि उसको रेस्पेक्ट करते हुए हम कैसे काम कर सकते हैं। फिर हम लोग उनको कुछ कुछ एक्टिविटी जो है मंथन कैंपस में होता है, थोड़ा सा हमारा एक सिंपल उनको खाना, रहना और छोटी छोटी गतिविधियां जो कभी हाथ से नहीं करते, थोड़ा हाथ से काम करने का उनको मिलता है यहाँ। और फिर हम जो है, अब देख रहे हैं कि हम जो होस्ट होम है, जिन परिवारों के साथ उनको रहना है, जिस समुदाय में उनको हम यहाँ बुलाते हैं। एक परिचय होता है दोनों का मिलकर के, होस्ट होम के साथ भी और यूथ के साथ। और दोनों के जो परिचय होने के बाद वो लोग सीधा गांव में चले जाते हैं। अब गांव में ये 3 महीने के स्टे हो सकता है, 1 महीने का स्टे हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, एक नाइट का हो सकता है, अलग अलग तरीके के स्टे होते हैं। और इसमें लोकल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दोनों मिक्स ग्रुप होता है, और कभी कभी तो बाहर के लोग भी, जैसे कभी इंग्लैंड, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इसमें होते हैं। और अपने इंडिया के तो करीब 8-10 स्टेट के युवा यहाँ आ चुके हैं। जब ये कम्युनिटी में जाते हैं तो कम्युनिटी में भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, जिसमें सबसे पहले वो परिवार के साथ मिलते हैं, थोड़ा फील करते हैं कि परिवार में क्या चीज होती है, थोड़ा उनके काम जो डेली जो काम होता है उसमें अपना हिस्सा बटाते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं। और जो भी एक्टिविटी है उसको बहुत पोलाइटली, रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा फील करते हैं। और थोड़ा कम्युनिटी में भी, बाहर गांव में भी, खेतों में, आसपास एरिया में घूमते हैं, देखते हैं कि क्या चीज है। ये देखने के बाद फिर वो अपना एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि इस कम्युनिटी में, इस गांव में मैं क्या करना है मुझे। उस एक्शन प्लान के साथ वो करते हैं कम्युनिटी में से। जब और अलग अलग तरीके की 4-5 एक्टिविटी वो कम्युनिटी में करते हैं। जैसे उनका सबसे
प्रॉब्लम क्या है, जैसे पानी का है या सरकार के साथ करना, तो कम्युनिटी को मोबिलाइज करके फिर सरकार के साथ बैठ करके बात करना कि कैसे वहां हो सकता है, या स्वच्छता का कार्यक्रम है तो उसमें सपोर्ट करते हैं, स्कूल में सपोर्ट करते हैं, और वहाँ के लेबर जो है उस काम को वो खुद शेयर करके एक फील करते हैं कि मजदूर कैसे काम करते हैं, अगर उस मजदूर की जगह मैं हूं तो मुझे कैसा लगेगा, और ये खुद एक एंजॉय भी करते, खुद भी अपने खुद की एक्टिविटी, खुद के खेल, और लोकल बच्चों को इन्वॉल्व करके उसमें हो जाते हैं। और फिर लास्ट में एक ना एक रिपोर्ट भी बनाते हैं जो हमें हैंड ओवर करते हैं, उसमें उनका एक्शन प्लान होता है, उन्होंने क्या काम किया वो भी होता है, प्लस आगे का एक्शन प्लान भी होता है। अगर नेहल जी इस चीज में अगर कुछ शॉर्ट में ट्रांसलेशन करना हो तो, क्योंकि हृदय मेरे पास है, वो एक शॉर्ट में आपको ये पूरी प्रोसेस समझा देगी, फिर हम नेक्स्ट जी शुरू जी, करेंगे। thank you. So for those who I mean most of you have understood by the presentation, you know, but like just to give you a context, why the session is also so important is because we are talking about the power of youth and how uh, Teja Ramji's motive to kind of look at the youth through like when they see the world through their heart, you know, their perspectives change. So yeah, this is one of the programs. I think one of the major programs where we have a youth immersion, cultural immersion program with kind of like people from all over the globe, and this is where they experience the true culture by living with the communities there. And also there's a lot of cross exchange of like culture, which both Teja Ramji and Nivi will be talking about further. So yeah, we are there yet, and there are lots of programs like he talked about of how they develop social action projects with the communities, looking at their needs. Thank you, Teja Ramji. Please proceed. There is Okay. also one question, sorry. Yeah. I think Ashwani say, I can't read Hindi properly, but Ashwani, would you like to uh, talk about it? What you have written? I can ask on Ashwani's part. Yeah, yeah, तेजाराम sure. जी, एक एक क्वेश्चन है जो चैट बॉक्स में लिखा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि आपको ये काम करने की प्रेरणा कैसे आई, और शुरुआती समय में आपको जब परेशानियां आई तो आपने उनका सामना कैसे किया। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड में वही आने वाला है। तो ये मेरा एक एक टर्निंग पॉइंट था। मैं ये कहानी है 1984 की, जब मैं किशनगढ़ मतलब अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था दिन में, और शाम के समय ऐसे बच्चों का स्कूल चलाता था जो कहीं स्कूल में नहीं जाते हैं, दिन में किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, या तो छोटे भाई बहन को रखते हैं, गाय चराते हैं, या परिवार की मदद करते हैं, माँ की मदद करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं स्कूल चलाता। और एक जनरली जो पढ़े लिखों में एक होता है, वो भी मेरे में था, क्योंकि मैं तो M.Com का पढ़ने वाला हूँ, और ये लड़के तो कुछ नहीं जानते, ये तो गाय भैंस बकरी चराने वाले हैं। तो मुझे इनको पढ़ाने के लिए मुझे क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, जब मुझे ट्रेनिंग के लिए बोला गया। लेकिन ट्रेनिंग के बाद मुझे ये बच्चों को देखने का एक एक दूसरा नजरिया मिला, एक नई दृष्टि मिली। और उसमें मुझे देखा, क्योंकि मेरी क्लास एक कहानी से और एक गीत से शुरू होती थी रोज, हर बच्चे का कहानी आज दिन में क्या हुआ, और खेल और गीत से मेरी क्लास समाप्त होती। तो एक दिन एक मेरी क्लास में 60 लड़के लड़कियां थे। एक कहानी एक लड़के ने सुनाया कि आज मैं सुबह कितने बजे, 5 बजे उठी, उसके बाद अपना दैनिक काम करने के बाद थोड़ा जानवर का वो जगह साफ किया, फिर बकरी का दूध निकाला, फिर थोड़ा सब्जी बनाया, पोछा लगाया, और फिर बकरी को लेके और जंगल में गई, पेड़ पे चढ़ी, पेड़ काट के बकरी को खिलाया। और उस दिन उस की बकरी के 2 बच्चे भी हुए, उसको ठीक से संभाला। फिर शाम को 5 बजे वापस घर आई, बकरी का दूध निकाला,
थोड़ा पानी लेके आई मम्मी के लिए हैंडपंप से, माँ को मदद किया सब्जी बनाने में, और फिर मैं अभी आपकी स्कूल में आ गई। तो मैंने पूछा खाना खाया, उसने कहा खाना तो मैं वापस जाके खाऊंगी। मेरे उस समय क्लास चलती थी 7 से 10 बजे रात को। उस बच्चे की जब मैंने कहानी सुनी, तो जो मेरा एक ईगो था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और ये तो कुछ नहीं जानते, वो नीचे आ गया। क्योंकि वो तो मैं उनको सिर्फ एक लिटरेसी दे रहा था, प क री लिखना सिखा रहा था, लेकिन वो तो बकरी के बारे में, अपने खेत के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में, जंगल के बारे में 100% जानती। तो तब से मुझे एक समझ में आया कि इन बच्चों की जिंदगी में अगर सिर्फ लिखना पढ़ना आ जाए तो इनकी जिंदगी कितने वैल्यूबल हो सकती है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी शिक्षित है, इनको हम क्या शिक्षित कर सकते हैं? केवल उनके कलंक लिखा हुआ है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, उस कलंक को मिटा सकते हैं। और तब से अब तक 2000 अभी जुलाई 2024 तक हम ऐसे बच्चों के साथ लगे हुए हैं। आज भी नाइट स्कूल में गए, आज भी 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं कम्युनिटी में जो कहीं स्कूल नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये नंबर बहुत कम हो गया। उस समय जो है हमारे पास 150 नाइट स्कूल थी, मैं तिलोने की नाइट स्कूल चलाता था, लेकिन आज वो नंबर बहुत कम हो गया। बहुत सारे बच्चे स्कूल से जुट गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो घूमने वाले हैं, जो बागरिया साटिया कम्युनिटी है, जो अभी भी उनकी जिंदगी में पहली प्राथमिकता है बच्चों के लिए 2 टाइम का खाना, मजदूरी पे जाना, पैसा कमाना और बच्चों को 2 टाइम का खाना खिलाना। तो ये चीज को लेकर के शुरुआत हुई कि मैं अब अपना एमकॉम का पढ़ाई करके फुल टाइम पढ़ाई खत्म करके फुल टाइम के लिए मैं बैरकपुर कॉलेज में आ गया बच्चों के साथ काम करने के लिए। और क्योंकि एक और कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो लगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस दुनिया में, इस एरिया में आना चाहिए, देखना चाहिए। तो एक दिन मैं ऐसे ही एक पढ़ा लिखा बहुत अच्छा जानकार समझदार जो पर्यावरण की पढ़ाई कर रहा था, अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, और जब वो ब्लॉग लिखता या आर्टिकल लिखता या कुछ भी करता तो लोग उसको ध्यान देते। वो एक दिन मैं उसको नाइट स्कूल विजिट ले जा रहा था। रास्ते में काफी सारी बकरियां घास खा रही थी। उसने गाड़ी रुकवाई और देखा कि जिन बकरियों को तुम पालते हो, उसको बहुत बड़ा शौक Yes. लगा कि जिन बकरियों को तुम पालते हो वो तो पूरा घास खा रही है, और वो तो ये पर्यावरण की दुश्मन है जिसको आप घर घर में पालते हो। तो मैंने उस समय कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, लेकिन हम गाड़ी लेके चले गए स्कूल देखने। और उसी घर में जहाँ स्कूल चलती थी वहीं हम जाके रुके। उस घर में उस एक बुजुर्ग आदमी नहा रहा था, खाट खाट के ऊपर बैठ के, नीचे पानी का तपेला रखा था। उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो बकरियां आ गई, उस नहाने के पानी में थोड़ा आटा डाला और सब बकरियां पीने लगी। पीने के बाद वही बच्चियां दूध निकाली, हमने उस दूध का चाय पिया, और तब उस बुढ़े से बुजुर्ग से बात किया, वो कहानी, वो सवाल कि ये बकरी पर्यावरण का दुश्मन है क्योंकि पत्ती खाती है, पेड़ खाती है, सब चढ़ जाती है। तो उसने बुजुर्ग ने ये जवाब दिया कि बकरी पर्यावरण का दुश्मन नहीं है, बकरी हमारी जिंदगी है। और क्योंकि पेड़ बकरी की जिंदगी है, अगर पेड़ है तो बकरी जिंदा है, और बकरी जिंदा है तो हम जिंदा है। तो क्योंकि बकरी का खाना पेड़ है तो हम पेड़ को एक बच्चे के जैसे पालते हैं, क्योंकि पेड़ जिंदा रहेगा तो हमारी बकरी जिंदा रहेगी। और क्योंकि बकरी तो मेरा एक एटीएम है, जब भी मुझे चाहिए, बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना, एक बच्चे को बेचा, 1000 रुपये लिया और हॉस्पिटल चले गया। बच्चे की फीस देनी है, एक बकरी को बेचा, बच्चे की फीस, कपड़े, किताबें खरीद लिया। और क्योंकि मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, रोज बकरी लेने वाला मेरे घर के बाहर आ जाता है और मैं उसको बेच देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि बकरी हर तरह के पेड़ खाती है और वो बीज भी खाती है पेट में, और क्योंकि एक बकरी दिन में कम से कम 20
15-20 किलोमीटर घूमती है जंगल में, पहाड़ पे भी जाती है। तो वो बकरी मेंगने जब करती है तो उसमें बीज भी होता है, और वो हर जगह वो बीज छोड़ती है। बारिश होती है वो बीज एक पौधे के रूप में लग जाता है। जहाँ फॉरेस्ट वाले भी नहीं पहुंचते हैं और कोई भी व्यक्ति पेड़ लगाने नहीं पहुंचता, वहां बकरी बीज छोड़ती है और वो पौधा बन जाता है। तो बकरी एक तरीके से पर्यावरण की दोस्त है, ना कि दुश्मन। और इसी से फिर वो हमारे साथी था, उनको लगा कि हाँ, मैंने एक एंगल, इस एंगल से कभी बकरी को नहीं देखा, जो आज मुझे एक नया दृष्टिकोण मिला है बकरी को देखने का। तब से हमें लगा कि हमें बड़े लेवल पे ऐसे अच्छे युवा जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्योंकि उनका वास्तविक दुनिया से रिश्ता नहीं है, उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो हम कैसे ऐसे लोगों को हम लाएं और अभ्यास करें। तब से लेके अब तक हम इस तरीके के युवाओं के साथ काम करने लगे हैं। और क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि मैंने सोचा लड़कियों को पढ़ाने के लिए कि मैं एमकॉम पढ़ाऊं, ये लड़कियां तो बहुत कम पढ़ी लिखी है। ऐसे ही हम एक गांव में, जहाँ लालटेन नहीं है, लाइट नहीं है, दुकान नहीं है, बिजली नहीं है, हमने सोचा कि हम सोलर लालटेन देंगे उस गांव में। हम सोलर लालटेन लेके गए और बात किया, उन्होंने मना कर दिया कि लालटेन नहीं चाहिए। दूसरे बार गए, तीसरी बार गए, ऐसा करके 4-5 बार उस पूरे कम्युनिटी में हम बैठे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें लालटेन चाहिए नहीं। क्योंकि हम अपने अंदाज में जा रहे थे, उनका अपना एक सोचना था। तो हमारे साथ में कई साथी है, वो चिढ़ गए कि यार यही कम्युनिटी मिली क्या आपको लालटेन देने के लिए, हम फ्री में लालटेन दे रहे हैं, 5,000 की लालटेन है, और ये लोग मना कर रहे हैं। तो वो हम दूसरी कम्युनिटी में क्यों नहीं जा सकते। लेकिन हमने ट्राई किया। फिर एक दिन एक लालटेन हमारा नाइट स्कूल टीचर था, उसके घर में छोड़ दिया। जब उस लैंटर्न का लाइट उन्होंने देखा, और फिर रात को उसमें हत्या किया, बातें किया, बकरी का रेवाड़ा में वो लाइट लेके गए और देखा कि ये तो बहुत मतलब की चीज है और लेना चाहिए। दूसरे दिन आगे होकर उन्होंने फोन किया कि आ जाओ, पूरी लालटेन दे दो, हमें लेने हैं। और एक ही रात में 80 लालटेन, हमारे हमारे पास सिर्फ 80 लालटेन थी, और वहां से डिमांड आ गई 100 लालटेन की। और उसी समय उसी रात में उनका 1,000 रुपये कंट्रीब्यूशन भी हमें मिल गया। तो हमें कई बार हम अपना एजेंडा लेके कम्युनिटी के पास जाते हैं। कम्युनिटी का अपना एक दृष्टिकोण होता है, उनका भी एक जीने का एक विजन होता है, और हम अपना विजन लेके वहां जाते हैं। तो थोड़ा हमें तसल्ली करना पड़ता है कि हम लोग जो चीज हम देना चाहते हैं, जब तक वो उनको समझ में नहीं आए तब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक दूसरा कहानी है जिसको लेकर के हम जनरली परेशान हो जाते हैं कि ये लोग सुनते नहीं है, या हम देना चाहते हैं लेते नहीं है। आ, एक और कहानी मैं बता रहा हूँ आपको कि यही स्कूल चलाने के लिए सर्वे कर रहे थे हम, घर घर में जाके। एक वही जो जनरली डायरी लेके बैठते, तो एक घर में गए, और घर में, उस घर में वो आदमी गुजर बीमार था, उसके पास बैठ गए और उनसे पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके परिवार में, ये सब कहानी हम पूछ रहे हैं। उसी समय एक उसकी बेटी बाहर से आती है, एक हाथ में गिलास लेके, और उस पिताजी को देती है। उस गिलास में हमने सोचा दूध होगा या जूस होगा, जो बीमार आदमी के लिए जनरली जनरली मान के चल। लेकिन ताज्जुब की बात है, देखा तो उस गिलास में पानी था, जो पड़ोस के घर से वो मांग के लेके आए एक गिलास। तो हमने पूछा कि ये बाहर से क्यों लेके आए, तो उसने कहा हमारे घर में मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है, वो भी तालाब का डायरेक्ट पानी है, बीमार आदमी को नहीं पिला सकते। तो उस परिवार में जिसमें हम सर्वे कर रहे थे बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, उस परिवार में एक गिलास मीठा पानी चाहिए था स्कूल बच्चों को बाद में। तब हम वहीं से आए और सीधा जो डायरेक्टर बंकर रोय थे उनको बोला कि नहीं, ये एजुकेशन शिक्षा का बात की बात है, उस परिवार का ये स्थिति है। तब क्या हो सकता है, कि उन्हें सडनली कहा कि नहीं, हमने एक स्टोरेज टैंक बनाएंगे, क्योंकि जिस घर से पानी लेके आई उसके पास सक्षम परिवार था, स्टोरेज टैंक था, उसने मीठा पानी भरवा लिया था।
इसके पास स्टोरेज टैंक नहीं था क्योंकि गरीब आदमी था, तो हमने एक स्टोरेज टैंक बनाया। लेकिन क्योंकि स्टोरेज टैंक बनने के बाद भी परेशानी तो नहीं होती, क्योंकि उसको भरने के लिए भी पानी चाहिए। तो हमने एक बड़ा सा वाटर शेड से एक तालाब बनाया जिसमें 2 करोड़ लीटर पानी भरता है बारिश का, जो हमने कोका कोला फाउंडेशन के सपोर्ट से किया। और आज उस तालाब में, आज जून में, बाकी सब जगह सूख जाता है लेकिन उस तालाब में 365 दिन पानी रहता है। जैसा मैंने कहा है कि हम प्रोफेशनल साथी भी और गांव के लड़के दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि गांव के लड़के भी अपनी शक्ति को पहचाने और अपने गांव के मुद्दों को समझे। तो ऐसा ही एक और हमारे पास एक टीम आई, जो एक बैंक में अफसर थे और 10 दिन के लिए उनका एक एक्सपोजर यहाँ आया था। कम्युनिटी में रहना था, उनको समझना था, लेकिन वो इधर कैंपस में आते ही थोड़ा सा उनका समझ में नहीं आया, कि क्योंकि वो अच्छे परिवार से थे, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और अच्छी बैंक में उनको सर्विस लग गई, वो भी अफसर लाइन में, और मंथन में वो क्या सीखना है उनको समझ में नहीं आया। हालांकि हमने थोड़ा अच्छी व्यवस्था की उनके लिए, खाने पीने रहने के लिए, फिर भी उनको 3 दिन तक वो परेशान रहे। हालांकि उसमें 2-3 लड़कियां थी, तो खुद भी परेशान थे कि ये उनके एटीट्यूड्स हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन तक वो समझ में नहीं आया। फिर हमने चौथे दिन उनको एक कम्युनिटी में भेजा, अलग अलग जगह, और मैंने उनको एक चेक लिस्ट दिया कि आप जिस घर में जा रहे हो उस घर में ये लिस्ट बना के ला, उनकी रसोई में क्या है, उनके घर बार में इनकम का सोर्स क्या है, लाइट है, बिजली है, पानी है, दवाई का, ये सब एक चेक लिस्ट बना के दी। वो गांव में गए, रात वहां रुके, वापस आए, जब मैंने फीडबैक मीटिंग किया तो उनको समझ नहीं आया, वो बोल नहीं रहे कुछ। तो हमने सोचा कि और कुछ बुरा हो गया वहां, लेकिन जब बोला तो उन्होंने कहा कि आखिर उस गांव की ये हालत क्यों है ऐसी, परिवार की ऐसी स्थिति क्यों है, क्योंकि उनके घर में तो एक छोटा सा पीपा है जिसमें वो सिर्फ एक टाइम का उनके पास आटा है, दूसरा टाइम तो मजदूर लाके कमाएंगे तब वो खाएंगे। लाइट तो है नहीं, टॉयलेट तो है नहीं, पानी का सोर्स तो नहीं, 6 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, स्कूल तो है नहीं, हॉस्पिटल तो उनके पास जाते नहीं। तो ये स्थितियां क्यों है? तो हमने, जब चर्चा हुई तब समझ में आया कि उस गांव में कम से कम 8-10 ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहे तो इन सब चीजों की मदद कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो संवेदनशील नहीं है, उनको समझ नहीं है कि कहाँ से ये सोर्स ले सकते हैं, और उसकी वजह से उन घरों की, परिवार की ये कंडीशन है। और क्योंकि आप एज अब बैंकर बनने जा रहे हो, जब बैंक में जाके आप पॉलिसी बनाओगे, नीतियां बनाओगे, तो इस तरीके के लोगों के लिए बनाओगे, ऐसे लोगों के लिए। तब वो, जो पहले तो 4 दिन तक हमें परेशान कर रहे थे, खुद भी परेशान है, और जब वो हमने भेजा चौथे दिन, फिर 5वें दिन अपनी इच्छा से दोबारा गए कि अब हम ठीक से समझने के लिए जाना है वापस। और आज भी वो हमें फोन करते हैं, पूछते हैं कि उस कम्युनिटी का यही हाल है, उसमें कुछ बदलाव आया, हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक, जो मैं बोलता है कि जिनके पास रिसोर्स है उनको हम कैसे संवेदनशील करें, ताकि वो जिनके पास नहीं है उनके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें। ये एक कहानी बता रहा हूं मैं, जहाँ करीब 3 महीने के लिए 6 हमारे युवा उस गांव में रुके। उन्होंने कम्युनिटी के साथ बहुत सारा काम किया, महिला रात्रि स्कूल चलाया, और जब वो महिलाओं के साथ मीटिंग कर रहे थे तो बात है कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तो ये निकल के आया कि पानी, क्योंकि पानी नहीं है। वो 9 लाख रुपए का पानी एक साल में पूरा गांव पीता है, तो ये मुश्किल था उनके लिए। तो उन्होंने पूरा मोबिलाइज किया और कहा कि चलो हम पंचायत में चलते हैं या कहीं पीएचडी के पास चलते हैं, महिला उनका आने नहीं है। हम लोग तो ये सब हो नहीं सकता, हम तो कभी गए नहीं। फिर भी उन्होंने, वो लगे रहे, और आखिर में 4-5 महीने के बाद वो पूरी की पूरी महिलाएं तैयार हुई पंचायत में जाने के लिए। जो पंचायत में वो महिलाएं गई, क्योंकि वो पूरी की पूरी दलित महिलाएं थी, पंचायत में गई तो सरपंच खुद भी थोड़ा सा ऐसा रह गया कि ये महिलाएं और पंचायत में, और ये पानी का इशू उठा रही है, तो उसको समझ में नहीं आया। लेकिन उन्होंने एक
एप्लीकेशन दिया और बोला कि हमें पानी चाहिए। और क्योंकि हमारे युवाओं ने पूरा एक सर्वे किया था कि कहाँ हम बोरवेल करेंगे तो अच्छा पानी आएगा, वहां से यहाँ तक लाइन लाने में कितना बजट लगेगा, कहाँ से, ये पूरा करके पंचायत के सामने, सरपंच के सामने एक प्रपोजल रख, महिलाओं के आगे रख करके, और ले दे के 6 महीने के बाद पंचायत ने 25 लाख रुपए का एक बजट सेंक्शन किया, बोरवेल किया, लाइट का कनेक्शन कराया, और वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर से पानी उनके गांव में आया। और आज जहां 5 लीटर पानी वो मांग के बाहर से डालती थी, आज हर घर में 10,000 लीटर का पानी का टैंक भरा हुआ है उनके, और वो उन महिलाओं की बदौलत। 6 महीने लगे उनको महिलाओं को मोटिवेट करने में, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम ये सब चीज, हमारे दूसरे मुद्दों को भी हम उठा सकते हैं। उसके बाद लड़कियों को पढ़ाने का मुद्दा, बैंक से राशन, बैंक में जाने का मुद्दा, राशन, पेंशन, इन सब मुद्दों को लेकर वो काम करना शुरू किया। लेकिन एक बार उन्होंने एक एहसास करवाया, फील करवाया कि हम कुछ कर सकते हैं। और ये उन एक 6 युवाओं का 6 महीने का अ, ताकत था। क्योंकि बाहर के युवा ज्यादा से ज्यादा वो आएंगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन वो लोकल युवाओं को अपना पूरा स्किल ट्रांसफर करते हैं, उनको एक ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर, ये लिंक, गवर्नमेंट का लिंक किस तरीके से होता है वो देते हैं। और अभी हमारे पास कम से कम 5-10 ऐसे युवा हैं जो गवर्नमेंट स्कीम के साथ लग के काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये करीब 25% लोग ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं ले रहे हैं, जो कि उनको जरूरत है, लेकिन क्योंकि वो जानते नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रक्रिया मालूम नहीं है, और सिर्फ अपने मजदूरी में लगे रहते, तो ये युवा घर घर जाके उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराते हैं, उनको ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं। और पिछले 3 महीने में कम से कम 1,000 फैमिली को उन्होंने गवर्नमेंट फैसिलिटी से लिंक करवा दिया, और वो उनको जो पेंशन रुकी हुई थी वो चालू हो गई। और इसमें क्योंकि ये सब लोकल युवा है, और तो उनका, युवाओं का भी जो हम कहते हैं कि कैरियर नहीं है इसमें, तो एक कैरियर है, क्योंकि पूरे समुदाय में उनका एक रेपुटेशन बन गई, एक उनकी जिंदगी में एक वैल्यू बन गई कि ये बंदा है जो हमारे लिए काम करता है। क्योंकि पढ़े लिखे के जनरली ये कि पढ़े लिखे अपने ही काम करते हैं, लेकिन उनकी एक अलग छवि बन गई उस कम्युनिटी में, जो ता जिंदगी रहेगी कि ये बंदा है जो हमारी मदद करने वाला है। कई बार, क्योंकि कई बार आप समझाने से नहीं होता, लेकिन कई बार जब एक्सपोजर के लिए आप भेजते हो, क्योंकि हमारे लोकल लड़कियों को हमने यहाँ से केरला विजिट के लिए भेजा, माँ बाप से मिल के, दे करके, उनको कन्विंस करके, और समझा कि कैसे वो एडोलसेंट लड़कियां जा करके एक दूसरी दुनिया देखेगी, और आकर के अपने घर परिवार में एक नया शुरुआत करेगी, नई चीज की शुरुआत करेगी। और वहां से वापस आकर के उन्होंने देखा कि कम से कम एक भी लड़की, 100% लड़कियां जो वो स्कूल और कॉलेज में कंटिन्यू कर रही है, तो एक दिन भी स्कूल जाने का सपना उनमें नहीं था, तो आज स्कूल में कंटिन्यू करे। और ऐसे ही बाहर से, हाँ, एक नादन कैंप करके हमारा एक संगठन है, वो लोग भी रेगुलर इन बच्चों को इधर लाते हैं, युवाओं को इधर लाते हैं, और अलग अलग तरह के, कोई बैंक में काम कर रहा होता है, कोई स्कूल टीचर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई अपना कंपनी चलाता है, कोई अपना बिजनेस है, उन सबको ला करके ये सब फील करवाते हैं कि हाँ, हमारी जिंदगी ठीक से चल रही है, लेकिन अब हम और किसी का जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो दोनों तरीके का एक्सपोजर हम लोग करवाते हैं। अभी पिछले 10 साल से हम एक और करें कि जिस संविधान से हमारा जिंदगी चलती है, उस संविधान के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो अभी एक छोटे समूह से शुरू किया, और ये भी एक साथी आए थे जिन्होंने एक छोटा ग्रुप को ट्रेनिंग दिया कि हमारा आखिर संविधान कैसा है। एक पाठ्यक्रम हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसके अलावा हमारी जिंदगी में कहाँ है संविधान है, उसको लेकर के 10 लोगों को ट्रेनिंग दिया। और आज उस पूरा एक हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, एक टीम है, एक संगठन है, जिसमें 1,000 यूथ है जो इस संविधान को और संवैधानिक मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और लगातार उनके प्रचार में लगे हुए कि किस तरीके से संविधान हमारी जिंदगी को एक बेहतर जीवन दे सकता है, और हमारा संवैधानिक हक और अधिकार क्या है।
कई सारे ऐसे हमारे ग्रुप है, यूथ है, वॉलेंटियर है, जो अलग अलग तरह की फेलोशिप करते हैं और अपने लोकल मुद्दों को लेकर के ट्रेनिंग लेकर के और अपने कम्युनिटी में काम करते हैं। और खासतौर से जब कोविड का दौर आया था, कोविड में इन युवाओं ने जबरदस्त काम किया, क्योंकि ये जो वैक्सीन के बारे में बहुत सारे मिथ्स है, उनके बारे में घर घर जाके, जब कोविड के समय में जितने भी लोग थे वो सब अपने अपने फार्म हाउस में या कहीं बैठ गए, लेकिन ये लोग निकले और निकल के कम से कम ऐसी कम्युनिटी जो पहले से ही डिस्टेंस है उनके लिए, वहां जाकर के बात किया कि आखिर कोविड है क्या, कैसे बच सकते हैं, सरकार के साथ कैसे हम आ, अपने आप की सूचना दे सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं। और एक ऐसे रिसोर्स, क्योंकि कई बार हमको पता नहीं होता कि हमारे पास ये भी चाहिए, तो हमने एक सर्वे, इन्होंने एक सर्वे किया कि आपके परिवार में क्या क्या सुविधाएं नहीं है और क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, और फिर उनके घर में और उनके सोसाइटी में एक चार्ट लगाया कि इस परिवार में सरकार की कौन कौन सी योजना है, इस परिवार में नहीं है, इनके पास हैंडपंप है इसमें नहीं है, इनके पास पानी है, ताकि वो देखे कि हमारे पास ये नहीं है और उनके पास वो है। तो ये, और सबसे बड़ा मुद्दा एक जेंडर का हमारे है, तो ये जेंडर कोई बात करने का मुद्दा नहीं है। तो हमारा क्या, एक वाटर शेड का वो प्रोजेक्ट चल रहा था कंस्ट्रक्शन, तो उसमें कुछ पुरुष लोगों ने कहा कि यार, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम है तो महिलाओं को हमसे कम मजदूरी मिलना चाहिए, हमारे बराबर पुरुषों के बराबर नहीं होना। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो सब बराबर को बराबर ही मिलेगा। उसने कहा नहीं नहीं, जो मैशन था, मिस्त्री था, उसने भी कहा नहीं नहीं, मुझे पुरुष तो चाहिए ही चाहिए और इनको ज्यादा पैसा देना है, महिलाओं को कम देना है। तो हमने महिलाओं से बात किया कि क्या आप ये काम कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं। महिलाओं ने कहा हाँ बिल्कुल, एक से नहीं होगा, हम 2 महिलाएं काम कर लेगी। तो हमने पुरुषों को कहा कि भाई, हम तो महिलाओं को 500 दे रहे हैं, आपको भी 500 दे रहे हैं, आपको 700 नहीं देंगे, आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो जाओ। वो सब पुरुष चले गए काम छोड़ के, और महिलाओं ने डट के उस पूरा एनिकट को बनाया। और 5 दिन बाद उस मैकेनिक जो कह रहा था कि मुझे पुरुष चाहिए, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, महिलाओं से काम हो जाएगा, मुझे पुरुष नहीं चाहिए। और 5 दिन बाद वो पुरुष चारों तरफ आके देख रहे हैं कि क्या महिलाएं काम करें, उनको लगा कि महिलाएं तो काम कर रही है। और जाके फिर घर की महिलाओं को ये शिकायत हुई कि आपके पति ने तो काम करना बंद कर दिया। वापस आई उनके घर से कि हमारे को पुरुष को बंद क्यों कर दिया। हमने कहा भाई, ये ज्यादा पैसा मांग रहा है महिलाओं से, बोलो उनको महिलाओं जितना काम कर ले तो अच्छा है, इनको काम पे लगाओ। महिलाओं की इजाजत से 2 लोगों को वापस काम लगाया, लेकिन इस शर्त पर कि महिलाओं के बराबर ही पैसा मिलेगा। तो जेंडर एक, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बातों से नहीं, एक उनको फील करना होता है कि ये क्या है। और उसके बाद किसी भी लोकेशन पे हमें ये मुद्दा नहीं उठा कि महिलाओं को पैसा कम देना, पुरुषों को ज्यादा देना। तो हमारे काम में हम लोग इस चीज को, इन मुद्दों को उठाते हैं और उसी को लेकर के हमारे जितने भी यूथ है, इन मुद्दों को, चाहे उनका भेदभाव हो, जाति का हो, धर्म का हो, महिला पुरुष के बीच में हो, गरीब अमीर के बीच में हो, काला गोरा का भेद हो, ये बहुत सारी चीज चलते हैं, उन मुद्दों को लेकर वो कम्युनिटी में काम करते हैं। आ, तो ये हमने एक आपके सामने एक छोटी सी बात रखी। अभी क्योंकि हमारा ये यात्रा रुकी नहीं है, अभी कम से कम हम 2000 ऐसे युवाओं के साथ मंथन के साथ दे रहे हैं। युवा लोग वो अलग अलग जगह मंथन में नहीं रहते हैं, लेकिन अलग अलग पूरे देश में, अलग अलग राज्य में, और इवन 2-3 बाहर के देशों में भी है जो मंथन को सपोर्ट करते हैं या मंथन के मुद्दे को वहां वो एक्शन में ले आते हैं। अब मैं 3 ऐसे युवाओं को परिचय करा रहा हूँ, इसमें जिन्होंने यहाँ आया, सीखा और अब अपने अपने एरिया पे काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे युवा है जिन्होंने कुछ अपने आप को फील किया और अपना रास्ता बनाया, अपना कॉलेज, अपना यूनिवर्सिटी और अपने परिवार का जो डिब्बा उनको जीने का मिलता है, उसको ब्रेक करके अपना जीने का एक रास्ता चुना। मैं सबसे पहले एक निशा, जो आप देख रहे हैं बीच में, कि एक दिन भी स्कूल नहीं गई, क्योंकि ये भी वैसे जैसे मैं नाइट स्कूल में था, वो भैंस बकरी गाय चराती थी,
जैसे तैसे करके उनको लाया। और आज निशा इस स्थिति में थोड़ा हम बात करेंगे। निशा भी अपनी कहानी को बताएगी। निशा, नमस्ते। प्लीज बोलो। हेलो हेलो हाय मे- निशा। मेरा नाम निशा है और अभी मैं मतलब यूथ कलेक्टिव राजस्थान फेलोशिप में काम कर रही हूँ। और मेरी कहानी बहुत ही मतलब संघर्ष भरी है। तो शुरुआत में मैं बकरियां चराती थी, पढ़ाई नहीं करती थी। तो यहाँ मतलब मंथन की तरफ से नाइट स्कूल चलता था 2009 से पहले। तो वहां मैं कभी कभी स्कूल जाती थी। तो फिर कमला जी ने, तेजाराम जी ने मतलब मेरी मम्मी को समझाया कि स्कूल रोज भेजा करो। लेकिन वो ये है कि घर में बकरियां चराती तो शाम को लेट हो जाती, थक जाती, फिर स्कूल नहीं जाती। फिर धीरे धीरे करके ऐसे मैंने 2-3 क्लास पढ़ाई नाइट स्कूल में की। उसके बाद 2009 में मंथन में दिन का स्कूल शुरू हुआ। तो फिर मैं तो उस स्कूल में नहीं आती क्योंकि मुझे दिन में बकरियां चराना पड़ता था। फिर तेजाराम जी सर ने, कमला जी ने मेरी मम्मी से बात किया कि स्कूल भेजा करो निशा को भी। तो वो ये है कि घर में कोई काम करने वाला नहीं था। तो फिर मम्मी ने 1-2 बार तो भेजा स्कूल, लेकिन वही समस्या आ गई कि मम्मी घर का काम करे या बकरियां चराने जाए। तो फिर मैं स्कूल नहीं आई। तो फिर उन्होंने, तेजाराम सर ने, कमला जी ने मेरी मम्मी को अच्छे से समझाया कि अपनी बकरियां आपको चराओ और निशा को स्कूल भेजो। तो फिर 2009 से मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैं स्कूल आती लेकिन मैं कभी टाइम पे स्कूल नहीं आई। मतलब कभी 9 बजे आती, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, क्योंकि मैं घर का काम करके आती। तो मंथन में मतलब जो टीचर थे उन्होंने मुझे कभी स्कूल से वापस नहीं भेजा कि आप स्कूल से वापस जाओ, टाइम पे नहीं आए। तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मतलब लिखना पढ़ना आया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ मंथन में 8th क्लास तक पढ़ाई की। और फिर वही है कि यहाँ कोटड़ी में पानी की समस्या है। तो घर में भी पानी की समस्या थी हमारे। तो वो है कि स्कूल तो आते लेकिन मतलब कभी आते कभी नहीं आते, कभी बीच में चले जाते हैं पानी के लिए। फिर मैंने तेजाराम जी सर को बताया कि हमारे घर में पानी की समस्या है, मेरी मम्मी बकरियां चराने जाती है, तो फिर पानी कौन भरेगा घर में। तो फिर मंथन की तरफ से हमारे घर में टैंक बना। और फिर मैंने कंटिन्यू पढ़ाई मतलब करना शुरू कर दिया। और फिर 2014 में मैंने मतलब यहाँ से 8th क्लास पास कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर गई 9th में, और 10th का पढ़ाई वहाँ किया। और फिर मेरे मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज बने, मतलब 75। तो वहाँ की टीचर ने बताया कि आप साइंस लेके पढ़ सकते हो आगे। लेकिन वही समस्या है कि घर में कोई जानता नहीं है साइंस क्या होता है। तो मुझे लगा मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बाकी लड़कियां आगे पढ़ रही तो मुझे भी पढ़ना है। तो मैंने गुरुजी को आके बोला कि मुझे पढ़ना है, लेकिन मुझे साइंस पढ़ना है, जो कोटड़ी में है नहीं। यहाँ आर्ट्स था, मतलब 12th तक स्कूल है लेकिन आर्ट्स सब्जेक्ट था। तो मैंने तेजाराम जी सर को आके बोला कि मुझे साइंस लेके पढ़ना है। मैं भी नहीं जानती थी उस टाइम साइंस क्या होता है अच्छे से। लेकिन फिर तेजाराम जी सर ने मेरा एडमिशन यहाँ पास में रूपनगढ़ गाँव में प्राइवेट स्कूल में करवा दिया जहाँ साइंस था। तो मैंने 11th-12th की पढ़ाई साइंस से रूपनगढ़ से की। और उसके बाद फिर वही समस्या, घर में बोला कि मुझे कॉलेज करना है, तो मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो उनको लगा कि अगर 12th तक पढ़ लिया तो बहुत है मतलब। तो मम्मी ने बोला कि हो गई पढ़ाई, बहुत है, अब घर का काम करो। फिर मैं मंथन आई कि मुझे पता था कि मम्मी पापा मना कर देंगे लेकिन तेजाराम जी हमें पढ़ाई के लिए मना नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ आके बोला कि मैंने 12th तो कर लिया लेकिन मुझे आगे भी पढ़ना है। अब वही कि इतना जानकारी नहीं था, लेकिन फिर मैंने कॉलेज का फॉर्म भर दिया। तो मेरा नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया, मतलब साइंस से बीएससी के लिए। फिर मैंने 3 साल तक यहाँ किशनगढ़ से बीएससी किया। तो उस टाइम समस्या थी कि यहाँ से जो किशनगढ़ है वो 40 किलोमीटर दूर है। तो किराए की समस्या थी, मम्मी ने मना कर दिया कि पढ़ लिया बहुत हो गया। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे मतलब कॉलेज करना है। फिर गुरुजी ने मेरे को छोटा सा काम दिया कि आप लाइब्रेरी में आया करो, जब भी फ्री टाइम होता है यहाँ अपनी पढ़ाई करा करो। तो मैं यहाँ लाइब्रेरी में आती और यहाँ पढ़ती। फिर मेरा मतलब बीएससी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ मंथन स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मुझे लगा कि मतलब पढ़ाने के लिए बीएड चाहिए। फिर मैंने 2 साल जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से। और मतलब अभी मेरा बीएड सेकेंड ईयर चल रहा है। और मैं यहाँ मंथन के साथ काम भी कर रही हूँ फेलो के रूप में। और मैं 2019 में केरला भी गई थी, मतलब यहाँ से लड़कियां गई थी 8th क्लास के, उनके साथ। तो मैंने देखा कि हम लोग गांव में कैसे जीते हैं और वहाँ कितनी सारी सुविधाएं हैं लोगों के पास।
और वो कितने अच्छे से जीते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे गांव में जैसे गुरुजी तेजाराम जी गाँव मतलब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मतलब जैसे ऐसे डायरेक्ट नहीं तो वो लोगों को उदाहरण देते कि समझाते हैं कि कैसे मतलब बदलाव लाया जा सकता है। तो मैं भी अपने गांव को बदलना चाहती हूँ और ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास शिक्षा नहीं है वहां शिक्षा पहुंचाना चाहती हूँ। जेंडर कार्यशाला का बता जेंडर की कार्यशाला में हाँ, मैं अभी दिल्ली गई थी तो दिल्ली में देखा कि वो जेंडर के ऊपर था मतलब कार्यशाला। तो उसमें मैंने देखा कि हम गांव में कैसे जीते हैं, मतलब कैसे सोचते हैं और वहां के लोग कैसे सोचते हैं। बहुत बड़ा फर्क है, मतलब गांव में सिटी में बहुत बड़ा अंतर है। धन्यवाद निशा। तो ये एक क्योंकि ये अब कहानी सुनना अच्छा भी लगता है लेकिन कहानी सुनना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कि ये सब कहानी सुनने के लिए नहीं है, ये सिर्फ हो जाता है होने के लिए है। लेकिन कभी कभी और लोगों की थोड़ी प्रेरणा के लिए, थोड़ा सीखने के लिए और निशा के खुद की हिम्मत के लिए ये कहानी है। और क्योंकि निशा का बीच बीच में बहुत रुकावट आया लेकिन अलग अलग लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और अभी क्योंकि ये जो राजस्थान यूथ कलेक्टिव जहाँ 3 स्टेट का इधर एक फेलोशिप प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो निशा उसके लिए राजस्थान यूथ कलेक्टिव के लिए एज ए फेलो काम करेगी यहाँ अपने ही गांव में। और अपने गांव में उन सब मुद्दों को जो उन्होंने जेंडर कार्यशाला में सीखा है, जो केरला में गई है, जो मंथन में सीखा है, वो सब अपने समुदाय में उन सब मुद्दों को वो काम करेगी। अब मैं अगर निशा की कुछ सवाल है तो नहीं तो मैं एक और जी जी जी। हाँ तेजाराम जी, बस सवाल तो नहीं है पर टेक्स्ट में मनीषा कुछ बोला है। मनीषा, इफ यू वांट टू शेयर व्हाट यू हैव रिटन दैट वुड बी ग्रेट, इफ एनीवन वांट्स टू शेयर। निशा के लिए। हाय। हाँ, मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि निशा, आप तो एक इंस्पिरेशन है। जैसे आपने खुद स्ट्रगल किया, तो स्ट्रगल करने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अपने गाँव को वो चीज़ वापस रिटर्न करना और वापस उसके बारे में सोचना। तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो आप अपने गाँव वालों के लिए और सबके लिए। जस्ट वांटेड टू विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको भी सर, आप जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल से पढ़ी हूँ जिसमें मुझे लगता है मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। मेरी फैमिली की, मेरे आसपास जितने रिलेटिव्स हैं सबकी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी को एजुकेट करके, अपने गाँव को, समुदाय को। बस यही, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक और साथी से थोड़ा परिचय कराना है। प्रिया, फिर प्रिया जो अपना परिचय खुद ही देगी। तो कब आप आए थे पहली बार? वैसे नहीं थी मैं 2018 2018 में नेहल मुझे हृदय ने फोन किया। पता नहीं कहाँ से मेरा फोन नंबर मिला, हृदय ने फोन किया कि मुझे मंथन आना है। तो मैंने थोड़ा पूछा कहाँ पढ़ी लिखी क्या है, तो ये तो मैंने सोचा इतनी पढ़ाई किया, बीए हो गया, मंथन में आके क्या करना है आपको? तो नहीं, मुझे आना है। मैंने कहा आना है तो आ जाओ। और ये आ गए और फिर 1 साल के लिए टिक गई, यहीं गई नहीं। और 1 साल बाद गई। तो थोड़ा अपना अनुभव शेयर करेगी कि उनकी उस जिंदगी से भी उनको यहाँ क्या चीज अट्रैक्ट किया, क्या चीज अच्छा लगा, जिसके वजह से 1 साल एज ए वॉलेंटियर हृदय यहाँ रुकी। और अब उनकी जिंदगी में क्या चीज बदल गई। और क्योंकि अब ये कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने जा रही है। वो सब इस अंदाज को लेकर के जो उन्होंने 1 साल में इधर सीखा, शायद लोकल मुद्दों को ग्लोबल लेवल के किस तरीके से कनेक्ट करना है, उन सब चीजों को थोड़ा हम हृदय को भी सुनेंगे। Hi everyone. So my name is Hridya and I'm basically from Kerala. I came to Mandal in 2018 for the first time. And I think since then I'm listening to the same stories, maybe 150th time from
Tejaramji and Nisha, but still I get 10x inspired and, you know, excited when I listen to it. It's not about getting bored, but it's more than that. You get inspired each and every time. So I'm completely taken away by that. So yeah. So in 2018, as Tejaramji said, after my bachelor's, I got placed in Goldman Sachs, and that was my dream. That was my ambition to get into Goldman Sachs. So, but in 2 months or 3 months, I came to know that that's not my cup of tea. I'm not happy at all in that job. So I was in a point where I don't know what to do. So I was going through these organizations to volunteer with some organization. Then that's how I got Tejaramji's number. I called him up and I came here. So I've seen this with a lot of people and even with me that people who have done bachelor's or who thinks that they're educated, they come with a lot of fire, or say they come with a lot of a solution mindset. I also came with a lot of ego that, okay, I'm here to give solutions to something because I've done my BA, that too, like BA economics, that's it. But I was like, okay, I'm educated, I should do something for the community. With all those fire, I came in. But then in initial 1 month, it was super exciting that, you know, you are looking forward to staying in a place, having a challenging life and all of that. But then soon I understood that I had to learn, like, unlearn a lot of things and relearn, and a few instances actually shattered my ego like anything. So during one of our field visits, I was actually talking to a few people in the community itself. Then I was like, as I said, I'm more solution oriented. So they were talking something about Bakri God. So I was like, oh, why can't you do this? Why can't you do that? And all of that. Then this person told me that, what do you know about Bakri? I had no answer to tell him. Then he asked me, actually, who are you to tell me about Bakri? I was like, yeah, that's true. So then I was my ego was completely shattered. I felt insulted also. I came back that day, I had a conversation with Guruji, and that was a long conversation. Then I decided to buy goat and Bakri palan karne ke liye main decide kiya. So then I bought a goat, I named it Simba, and then I learned, like, what do it eat? So there is this state tree of Rajasthan, khechdi. So the suki leaves of that, we call it chara. So Bakri eats chara, theek hai. एक sack का चारा कितना होता है? Then what is the what are some diseases that affect Bakri and all of that? Then whenever I go to that, like, whenever I go to a community, I start the conversation with Simba. Like, yeah, I also have a god. What's your god's name? Then how do we, you know, we start conversation like that. And also, as I said before, I came with a lot of ego that through Guruji's experience, I mean, Tejaramji's experience, and listening to Nisha, meeting a lot of people like them, I understood the difference between literacy and education. As Guruji said, okay, people here know 99% about Bakri. The 1% they doesn't know is to write Bakri, right? Then maybe I'm helping them, or all of us are helping them with that, but we take all the credit most of the time. And most of the time we glorify it anything. Like, we stay here, it's a poverty-ridden area, there is caste system, and we glorify it anything, we write about it. But it took me time to understand that it's the privilege I have to come and do something like this, or to stay here, or what I have, you know, the whole life I had is a privilege. It's not something that I earned, it's a luck. And when we work for the community, it's not a grant, or it's not a blessing, or it's not a charity, it's their right. So we are not giving a charity, or so the whole unlearning part actually happened here. And then in 2020, during COVID, I went back home. And then in 2022, I worked with Meghalaya government on Chief Minister's Youth Center project as program manager. Then I started my own organization, and we are running a project, Women's Night School, for, like, with the Kalbelia community, with, again, collaborating with Manthan. And I was so sure that if I'm starting an organization, first project should be with Manthan.
And recently I got selected for Shivling Scholarship. So I'm heading to UK for my bachelor's in social innovation in London School of Economics. So like when you listen to Teja Ramji and Nisha, my story is nothing. But then something I'm really sure about is that, yeah, I'm excited to go to LSE and all of that. There's a reputation and everything, but I'm sure that I have learned, and this will be my highest learning point, being in Manthan. Learning from Teja Ramji, learning from Poosa Ramji, talking to Mummy is Teja Kamala ji, Teja Ramji's wife, and getting inspired by, listening to the stories like Nisha's story. And there are many more girls here. So yeah, that's it. Anything else? Thank you so much. कोई हृदय से कोई किसी का कोई सवाल है? क्योंकि हमारा ये भी एक मुद्दा है कि किस तरीके से हम शहर के पढ़े लिखे प्रोफेशनल युवाओं को थोड़ा गांव का अनुभव कराएं, ताकि जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाए तो वहाँ के सवाल का जवाब हमारे आंसर से दे, यहाँ जो सीखा उससे उत्तर दे उनको कि इकोनॉमिक क्या होती है लोगों का। तो इसी तरीके से हम लोग, और क्योंकि जब पता नहीं आगे क्या क्या होंगे, तो ये जो सीन है वो सब पॉलिसी में आना चाहिए, डिसीजन में आना चाहिए, नीतियां बनाने में ये लोग जब बैठेंगे तो क्या नीति बनाएंगे, ये सब अनुभव किया उसको। अब एक और नेहाल जी, सिर्फ 5 मिनट और आपका लेंगे। एक और जो आंचल है, जो अभी यहाँ जी टिक जी के जी काम करते, वो भी एज ए वॉलेंटियर आई यहाँ। कितने दिन के लिए है आंचल आप पहले? 20 days, 20 दिन के लिए यहाँ आई थी, और 20 दिन के बाद अभी पूरे टाइम के लिए इधर काम करने के लिए आ गई। तो थोड़ा हम आंचल से भी सुनेंगे कि अपनी बात कहेंगे आंचल। So first of all, good evening everyone. So I'm Anchal and I'm from Delhi. So मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि like मैं मतलब दिल्ली में ही रह रही थी, and I have been graduated from Ramanujan College, University of Delhi only. And after doing graduation, actually I am blank. I'm totally blank कि क्या करना है लाइफ में, ठीक है। एंड द जर्नी विल बी लाइक कि अब मैं चीजें देख रही थी कि हाँ इस सेक्टर में क्या होता है, उसमें क्या होता है। आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग एक्चुअली कि आफ्टर द ग्रेजुएशन आई विल गो इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, आई विल अर्न फ्रॉम देयर। एंड उसके बाद उसके साथ साथ बिकॉज माय ड्रीम इज टू बी लाइक यूपीएससी ऑफिसर, मतलब लाइक टू बी आईपीएस ऑफिसर। सो मेरा सब कुछ प्लान था कि आई लाइक डू द अर्निंग वाला पार्ट फ्रॉम corporate, and then I'll do the क्या बोलते हैं अपना स्टडीज वाला चीज साथ में, like साथ में चलाऊंगी। But when it come to implementation, it's got totally messed actually, because मैं corporate में 1 week टिकी हूँ, 1 month टिकी हूँ, but now I am यहाँ पे अभी 3 months से, ठीक है। तो you can like see the things, because मेरा हमेशा से ऐसा रहा है ना कि जब मैं कॉर्पोरेट में थी तो मुझे ना लोगों का एक होता है ना कि मेरे को फील्ड वर्क में लोगों से मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। बट फॉर द दिल्ली पीपल दे आर बी लाइक फील्ड वर्क, इट्स अबाउट बीडीए, लाइक यू आर डूइंग लोगों से बातचीत एंड यू आर सेलिंग थिंग्स, इट्स सो बोरिंग, ठीक है। एंड आई एम लाइक कि यार बोरिंग तो नहीं होता है, ऑफ कोर्स वी आर हेल्पिंग पीपल, वी आर एक्चुअली उनको क्या बोलते हैं हम लोग वो करते, कन्विंस भी करे तो उनके फायदे के लिए, ऑफ कोर्स अपने खुद के लिए तो नहीं कर रहे होते। ये चीजें चल रही थी। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट तो बिल्कुल वर्क नहीं किया, वो तो चला गया। अब नाउ मैं फिर से ब्लैंक हो चुकी थी कि अब अगर कॉर्पोरेट नहीं तो फिर क्या, बिकॉज अर्निंग इज मस्ट। क्योंकि आफ्टर माय स्कूलिंग ना, तो मैंने अपने घर से अर्निंग लेना बंद कर दिया था, मैं खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। एंड मेरा खुद का भी एक कह सकते हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज नॉट गुड, माय फादर इज ड्राइवर एंड मम्मा इज हाउस वाइफ। सो बेसिकली मुझे खुद को अर्न करना था, मैं चाहती थी कि मैं खुद से अर्न करके उनको इनफेक्ट दे सकूं कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज थी। तो उसके बाद फिर मैं एक दिन इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी एंड मुझे स्माइल इंटर्नशिप के बारे में पता चला। सो आई हैव बीन द पार्ट ऑफ प्रभा एज वेल, तो आई नो निहाल भैया। एंड उस मोमेंट पे क्या हुआ, मैं बहुत सारे लोगों से मिली। स्माइल इंटर्नशिप में मेरा प्लेसमेंट हुआ था उत्तराखंड में।
इट्स वेरी डिफरेंट ना, मंथन और उत्तराखंड, बट अभी मैं कोरिलेशन बताती हूँ. इट्स लाइक ओसी टाइम पीरियड चल रहा था, ओरिएंटेशन कैंप. एंड हम लोग 3 डेज के लिए हम लोग बेसिकली एक लर्निंग लेते हैं पूरी, कि हम लोग को 3 दिन में कम्युनिटी के साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, हाउ वी हैव टू एक्चुअली लाइक इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग, बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं. उन्होंने एक्चुअली बताया स्पेस क्या है, और तुम्हें थर्ड स्पेस को मतलब बहुत सारी चीजें हमने सीखी, कम्युनिटी क्या है एग्जैक्टली. तो वहां पे मेरा क्या हुआ, मेरा पैर, मतलब मैं जब से गई थी तब से मेरी हालत खराब थी, कभी पैर टूट रहा है, कभी हाथ टूट रहा है. एक्चुअली थिंग्स आर हैपनिंग डे बाय डे. एंड आई एम बी लाइक यार, ऐसे तो मैं पता नहीं कैसे प्लेसमेंट में जाऊंगी उत्तराखंड में, बिकॉज उत्तराखंड इज अ हिली एरिया. लाइक हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि ऐसे टूटे फूटे हालत में वहां तक जाना. सो वहां पे उसके बाद फिर मैंने बोला, मतलब मीनाक्षी दी वाज देयर, वो सीनियर है, वन ऑफ द मैनेजर वहां पे. तो मीनाक्षी दी भी लाइक कि आंचल एक काम करो, अगर तुम नहीं जा सकते तो यू कैन गो टू मंथन. मंथन इज अ नाइस प्लेस, वहां पे तुम्हारा ख्याल भी सब लोग रख लेंगे. एंड आई एम भी लाइक कि आई एम प्रीटी श्योर कि जब दीदी ने बोला कि तुम चिंता नहीं करो, मंथन जा रही हो ना, एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड आई एम भी लाइक कि ठीक है चलो देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से प्लेसमेंट मंथन में और राजस्थान में ही हो गया था. सो यहाँ से फिर मंथन जब मैं आई, मंथन में लाइक मैं 20 डेज के लिए थी. सो स्टार्टिंग टाइम पीरियड में हम लोग फील्ड विजिट कर रहे थे. दैट वाज अ चेंजिंग मोमेंट एवरी डे, जैसे दीदी ने बताया, हिजर दी ने, कि हम लोग हर दिन कुछ नया सीख रहे होते हैं यहाँ पे, बिकॉज कम्युनिटी अलग है, लोग अलग हैं, ठीक है, कल्चर भी बहुत डिफरेंस है. बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी, तो मेरा कल्चर और उत्तराखंड लाइक राजस्थान का कल्चर लाइक बोथ आर नॉट सेम एट ऑल. तो वो चीजें दिखने में आ रही थी और समझ में आ रहा था कि एक्चुअली क्या डिफरेंस है. तो वो सब चीजें एक्चुअली आई एम फेसिंग डे बाय डे. बट देयर वाज अ इंसिडेंट जो मेरे दिल पे काफी ज्यादा ऐसे लग गया, कि मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया एक्चुअली स्टे करने के लिए. सो आई वांटेड टू शेयर दैट इंसिडेंट विद यू, कि मैं एक दिन देयर इज कालबेलिया कम्युनिटी, दो लाइक उन्होंने डिफरेंस करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट मिला था कालबेलिया पे, कालबेलिया कम्युनिटीज पे. तो मेरे को डिफरेंस करने के लिए 2 कालबेलिया कम्युनिटी दिखाई. एक में जहाँ पे महिला रात्रिशाला ऑलरेडी इज गोइंग ऑन, हमारा वुमेन नाइट स्कूल, और एक वो प्लेस जहाँ पे कुछ भी नहीं है. यू कांट इमेजिन कि वहां पे there is no water facility, there is no electricity facility, water tanks are also not there वहां पे. like मतलब अगर मैं बोलूँ वहाँ के हालात तो बहुत ज्यादा ही कम थे कंपैरेटिवली वुमेन नाइट स्कूल के हालातों से. तो मैं डिफरेंस खुद ही कर पा रही थी. तो मैं जब वहां पे गई, तो अब क्या होता है ना, आप जब भी आप गाँव में जाते हो ना, विलेजेस में, तो वहाँ के लोग बहुत प्यार देते हैं. लाइक दे आर गिविंग सो मच अप. इनफैक्ट आपको पूरी दिल्ली में शायद उतना प्यार कभी नहीं मिला होगा जितना शायद आपको वो कुछ दिन में आपको दे देते हैं, उतना प्यार. तो देयर पीपल भी लाइक कि उसके बाद फिर एक वहां पे एक वुमेन थी, वो आई मेरे पास, एंड उन्होंने मेरे से अपनी चीजें शेयर करी कि यार मतलब बेटा, आप अगर हमारे लिए कुछ कर पाओ, हमारे पास वाटर फैसिलिटीज मतलब पानी वगैरह नहीं है यहाँ पे, आप देख रहे हो ना, मगर बारिश भी आ जाए तो हमारे पास छत नहीं है छिपने के लिए, बिकॉज वहाँ पे हाउसेज भी नहीं थे. और मैं बहुत ब्लैंक थी, क्योंकि मेरे पास एक भी जवाब नहीं. मतलब आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन चीजों के बारे में पता था कि हाँ स्कीम्स होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन मैं उनको कैसे समझाती हूँ चीजों को. मैं उनको मतलब मैं उनको हेल्प नहीं कर पाई. तो बहुत हेल्पलेस फीलिंग एक आती है ना, जो एकदम ब्लैंक होने पे. तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पावर नहीं है. मेरे पास को पावर नहीं है कि बीइंग, अगर मैं आईपीएस और आईएएस में अपने आप को अज्यूम करूँ तो शायद मैं उन कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकती थी इस मूवमेंट पे. बट मैंने उनको बोला कि मेरे पास अभी पावर नहीं है, तो मैं शायद आपके लिए अभी ऐसा तो नहीं कर सकती. हाँ आपको बता सकती हूँ कि आपको आगे कैसे करना है, लेकिन आपको डायरेक्टली वो चीज के लिए बेनिफिट नहीं दे सकती जो शायद आपको भी जरूरत है उस चीज की. तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, दैट ब्लेसिंग विच एक्चुअली चेंज माई लाइफ, और मेरा सिनेरियो कि मुझे कहाँ जाना है. तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको एक्चुअली ब्लेसिंग देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि एक दिन आप यहाँ पे आओगे और हम लोगों के लिए काम करोगे, और आप करोगे मुझे पता है. और उन्होंने वो आशीर्वाद इतने दिल से दिया था कि देखो मैं अभी यहाँ पे मंथन में बैठी हूँ. ठीक है. सो दैट वाज अ चेंजिंग मोमेंट. तो फिर उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वहां पे वैकेंसी निकली, मंथन में आई. सो देयर इज अ प्रोजेक्ट समृद्धि करके. समृद्धि में बेसिकली देयर आर 5 पंचायत ऑफ ब्लॉक, परबतसर ब्लॉक. सो उस परबतसर ब्लॉक की 5 पंचायत में वी हैव टू इम्प्लीमेंट दी गवर्नमेंट स्कीम्स वाला थिंग. सो बेसिकली भी मैं 5 पंचायत में ही वर्क कर रही हूँ करेंटली अपनी टीम के साथ में. ऑफ कोर्स टीम जो होती है वही हमारा एक पूरा का पूरा सर्कल होती है, क्योंकि उसके अलावा अगर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे तो शायद वो चीज ना रह जाए. तो इसीलिए टीम तो बहुत मस्त है, तो उनके साथ अभी वर्क कर रही हूँ. बट यहाँ की जर्नी यहाँ तक आने में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक जो रोल निभाया है वो यहाँ के लोगों का
होता है ना प्यार और उसने, क्योंकि वहां पे भी मैं किसी भी संस्था में जाके आई थिंक काम कर सकती थी, दिल्ली में भी देर आर सो मेनी सोशल सेक्टर की वर्क, लेकिन मेरा ऐसा था ना कि मुझे पता चल गया था कि आपको जो एक होता है ना कि आपको काम कहाँ करना है। मान लो कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में भी सोशल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि आपकी जो एक होता है ना, आपकी जो वैल्यू, आपकी पढ़ाई की वैल्यू कौन समझेगा? क्या वो लोग समझेंगे कि यहाँ के लोग समझेंगे? यहाँ के लोगों के लिए आपकी जो वैल्यू है वहाँ के लोगों से बहुत डिफरेंट है, जो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में देख ली थी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे लोगों को मतलब कोशिश करी मैं जितना दे सकती हूँ। बाकी तो उन लोगों के पास तो बहुत कुछ है, मैं तो कभी उतना दे भी नहीं सकती उनका ज्ञान के अलावा। तो दैट वाज माय होल जर्नी एंड अभी करंटली आई एम वर्किंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Achal. It's really good to see you again. And thank you to also Nisha, and I don't know how to pronounce her name. Ritik, what's her name? There. Sorry, नहीं सुन नहीं पाए अच्छे से. भैया आपको ऑडियो आ रही है? हाँ हाँ, ऑडियो आ रही है, ऑडियो आ रही है. हृदय है उनका नाम, हृदय। हृदय, हृदय. हृदय। जी जी. हृदय। और थैंक यू सो मच आपका टाइम के लिए. किसी के पास क्वेश्चंस है, सवाल पूछना है तो, और कुछ बताना है तो तेजस्वी राम जी के लिए यू आर फील फ्री टू शेयर. नमस्ते तेजाराम जी। नमस्ते नमस्ते। बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। फर्स्ट स्लाइड से नजरें नहीं हट रही थी क्योंकि आप इतनी स्मूथली अपना काम बता रहे थे, जबकि शुरू से इस काम को लेके चलना, क्योंकि इतनी परेशानियां आती हैं जैसे आपने बताया, पर कैसे आपने छोटी कहानियों से अब हम लोगों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पर दरअसल में इतना इतना काम करना मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सच में बहुत इंस्पायरिंग था। और निशा, हृदया और आस्था, आई थिंक इनकी कहानी भी अलग। आंचल, हाँ। हाय आंचल। तो इनकी कहानी भी बहुत इंस्पायरिंग थी, स्पेशली क्योंकि आपने जो एक लाइन बोली, वो शायद मैं कभी आगे जाकर अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं आपकी ये लाइन जरूर हमेशा याद रखूंगी, कि जो आपने बोला ना कि आपके बच्चे जब आगे जाके पॉलिसी बनाएंगे तो वो रूरल पे उन्होंने देखा है और आपके नजरिए से वो दुनिया को बता पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो बहुत जरूरी भी है कि कोई मतलब, मैं ये पहले भी बोलती थी क्योंकि मैंने भी नॉर्थ ईस्ट में काम किया है 2 साल, और उसके पीछे भी यही मकसद था कि मेरे को वहाँ की ग्राउंड रियलिटी पता चल सके। तो प्रॉब्लम्स हर जगह, हर स्टेट की अलग अलग हैं, और हर स्टेट के रूरल में अलग प्रॉब्लम्स है। मैं कहती हूँ हमारा देश इतना ज्यादा डाइवर्स है ना, हम लोग कहते हैं कि हर थोड़े से आगे जाकर हम लोगों को अलग लोग मिलते हैं, तो अलग परेशानियां भी मिलती हैं, उन लोगों के अलग नजरिए भी मिलते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे को आपसे कनेक्ट करना है, क्योंकि आप आपके काम को और समझना है और प्रेरणा लेनी है। मुझे बस एक छोटा सा डाउट है कि आप इतने साल से काम कर रहे हैं, अभी तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है सब पता चल जाता है ऑनलाइन। फंड्स को रेज करना भी आजकल उतना आसान नहीं, पर फिर भी माध्यम बहुत सारे मिल गए हैं लोगों को, कुछ सीएसआर के थ्रू अप्लाई करके, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बहुत हैं। पर जब आपने काम शुरू किया होगा तब ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक रही होगी शायद। तो तब आपने अकेले शुरू किया था, टीम के साथ शुरू किया था, और आपने ऐसी परेशानियों के साथ कैसे डील किया था? मेरे ख्याल से एक टीम के साथ शुरू किया था। उस समय हम ये पूरा मंथन की शुरुआत 20 से लेके 30 साल की उम्र के लोगों ने शुरू किया था, और फील्ड वर्कर भी इसी उम्र के थे। लेकिन उस समय फंड प्लस काम को समझना मुश्किल नहीं था जो आज मुश्किल हो गया। उसका कारण है कि उस समय लोगों के बीच में एक जुनून था, एक जिज्ञासा थी इस तरीके के काम को समझना, और कम्युनिटी में जाना, लोगों से बात करना, और फिर उनको सपोर्ट करना। तो डोनर भी और सपोर्ट करने वाले लोग भी इच्छुक थे कि हम जाके देखें कि क्या है। हम लोगों को ये ऑनलाइन अप्लाई करना ये नहीं, वो खुद लोग इधर आते, देखते काम को, और फिर कहते कि हाँ हम इसमें सपोर्ट। अभी थोड़ा उल्टा हो गया है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हमको
ये समझाना पड़ता है लिख करके, देख करके कि हम क्या काम कर रहे हैं। और जब हम लिखते हैं तो अभी मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ उसको वैसा लिख नहीं सकता। जो तो यहाँ जब लोग आते थे तो सिर्फ सुनते नहीं थे, साथ बैठते और एक फीलिंग होता था। गाम जैसे अभी हृदया और आंचल, इन सब लोगों का एक यहाँ रहने से एक फीलिंग हुआ है। उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि वो शब्द की भाषा नहीं, ये दिल की भाषा सुनते थे कि हमें क्या तकलीफ है। अभी हमें वो सब चीजें लिख करके समझाना पड़ता है। और इसलिए आप जैसे युवाओं की हम लोगों की जरूरत होती है, आंचल, हृदय, इन सब की जरूरत होती है, ताकि सोशल मीडिया और इन सब में हमारी बातों को ऐसा लिखे जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वो सब बातों को पहुंचाना होता है। तो मुश्किल तो तभी भी थी और आज भी है, क्योंकि उस समय मुद्दे और थे, आज मुद्दे अलग हो गए हैं। लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि हम सब लोग आराम से हो जाएंगे, ये कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि मुद्दा आपका बदलता रहता है। उस समय मुद्दे अलग थे, आज मुद्दा अलग है। उस समय एक गांव में 100 बच्चे, 150 बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। आज मुश्किल से आपका 10-5 बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे। पढ़े लिखे लोग गांव में है, लेकिन गांव के बारे में और गांव के इशू के बारे में उतना ही अनपढ़ है जितना आज के 50 साल पहले थे। तो ये एक चैलेंज हो गया कि पढ़े लिखे लोगों को क्या समझाएं, क्योंकि उनके पास खुद के पास एक लॉजिक है। फिर भी लगे रहना है। और आइए, कभी भी आइए, हम लोग मिलके और काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल तेजाराम जी, शुक्रिया। Thank you so much, Teacher Ramji. I hope Induja had a little problem with Hindi. Just wanted to check if you were able to follow. Similarly, if there was anyone who was not able to follow Hindi, you can share with us. I can see Kelsang from Bhutan. If you were also able to follow, just give a thumbs up. If you want to share anything, please feel free. Okay, I assume we are all good to go. Tejaramji, I have a question for you. Like, not a question also, uh, like, but a thought that advice आप हम हमारे लिए कुछ दे सकते हैं. आई एम स्ट्रगलिंग बट हाँ, पर आज का युवा के साथ आप जो आपने बताया था ये मुद्दों के बारे में और कॉम्प्लेक्स हो होके जा रहा है। तो अभी आपको युवा के साथ आपको क्या एडवाइस देते हैं हम, बेसिकली इंग्लिश में बताएं तो करंटली आपका हमारा ये द यूथ अभी के लिए व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ऑल ऑफ अस वर्किंग इन द सोशल सेक्टर, नॉट वर्किंग इन द सोशल सेक्टर, बस इन जनरल। मेरे ख्याल से 2-3 चीजें जो अभी समझनी चाहिए हर एक युवा को। वो ये है कि हम लोग अपने स्कूल, अपने परिवार, अपने अपने यूनिवर्सिटी, ये एक एंगल देता है हमको दुनिया को देखने का, और एक हमें सर्किल में बांध देता है कि यही है। और वही हमारा रोड मैप को लेकर के हम जीने की कोशिश करते हैं, और कोशिश भी करते हैं, जैसा अंचल ने कहा कि, हृदय ने कहा कि हम कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। तो शायद ये है कि हम जितना भी कोशिश हो सके नेहल जी, कि हमें युवाओं को जो गांव के हो, शहर के हो, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, उनको एक उनका एटीट्यूड बदलने का जरूरत है। वो खुद ही बदलेंगे वो। तो उनको एक रियल वर्ल्ड से एक रूबरू कराना है कि एक और दुनिया है जहाँ बिना करिकुलम के, बिना प्रोफेसर के वो अपना बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। वो बहुत नेचर के नजदीक हैं। वो कुदरत को तकलीफ नहीं देते हैं। वो किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। और उनके पास हाईली कल्चर है। वो अपने अपने लोकल गीत संगीत जानते हैं।
लेकिन हम कभी उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है या उस तरीके की भाषा नहीं जानते। तो हम थोड़ा सा अपने परिवेश से, जैसा हम यहाँ लोकल कहते हैं कि अपने परिवेश में फंसे हैं, थोड़ा बाहर की दुनिया देखना चाहिए, वैसे ही हमें युवाओं को भी थोड़ा सा एक जो नेचुरल दुनिया है उसको देखने का जरूरत है। तभी हम लोग ज्यादा उस दुनिया को मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब बराबर एंगल आएगा ना, वो क्या सोचते हैं हम क्या सोचते हैं, तब वो एक एक ताकत लगेगी। और आपसे कोई सजेशन नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए कि अब हम लोगों का हमारी कम्युनिटी के बारे में एक अच्छा रिलेशन है, एक रेपो है, एक ट्रस्ट है, हमें इश्यू का समझ है, और एक प्रोसेस हमें मालूम है कि क्या करने से क्या हो सकता है। लेकिन अब हमें चाहिए कि एक हमारी बातों को, हमारे सोच को, हमारे काम को थोड़ा और दुनिया तक फैलाने की जरूरत है, जिसमें आप जैसे लोगों का मदद चाहिए, क्योंकि वो कैपेसिटी हम में है नहीं अपने काम को और लोगों तक फैलाने का, ताकि क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट तभी मिलेगा जब हमारा काम दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। तो उसमें आप लोग हमारी मदद करिए कैसे भी। जरूरी नहीं कि आप यहाँ मंथन में रह के दिखे और इधर काम करना है, लेकिन अलग अलग जो मैं बता रहा था कि अलग अलग साथी है, अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, फिर भी मंथन के साथ एक जुड़े हुए हैं। तो मैं यही आपसे उम्मीद है हमारी कि हमें सपोर्ट चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसको ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इसमें और सुझाव भी हो और हम और अच्छे से कम्युनिटी के साथ लग के हम काम कर सकें। थैंक यू सो मच तेजाराम जी, आपने इतना अच्छे से एफर्टलेसली आपका काम के बारे में बताया। गायत्री भी बोल रही थी कि जैसे प्रेजेंट किया आपने, वैसा काम तो नहीं होता बहुत मुश्किल से। कितने सालों का आपका, 30 साल से भी ज्यादा का काम आपने 10 स्लाइड में दिखा दिया। पर उसका वो फीलिंग जो निकलता है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी दैट। एंड जब आपको, आई जस्ट शेयर इट विद एवरीवन आल्सो, जब आई वाज इंटरेक्टिंग विद तेजाराम जी, inviting him to the session, and I was asking him what should the title be, what do you have to say. So he shared one very like a beautiful thing, like which was itself inspiring, I would say. So he said, when the youth see the world with their hearts, their perspective changes, and shaping their attitude towards seeing the world. So, and you might have seen in the slide also, one of his core principles, जो भी आप वो बात कर रहे थे, it was from the heart, and how the whole ethos, the whole culture जो उसने उसका काम से build किया है, it's through the heart. So which is like Achal was also talking about, ये दिल्ली में corporate वगैरह वगैरह, it kind of has that missing, I would say, most part of it. So the importance of working with the heart and feelings, and I mean, it's not like you only work with feelings and the heart, but also having that conscience and balancing is what Teja Ramji is all about, and you can see it by his work, So just wanted to appreciate that, Teja Ramji, and keep inspiring us. And he never says no to us. जब भी कॉल करता हूँ, he will always pick up. He's very, very humble. So those were my final things to share with you. So very, very thankful to you, as well as all the people who shared, Achal, Nisha, and yeah, I'll get her name soon. But yeah, anyone else wants to go? Um, okay then, we shall close the session. Thank you so much. तेजाराम जी, लास्ट में ना हम सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ एक पिक्चर लेते हैं, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टर्न ऑन द वीडियो। Thank
Everyone, please turn on their video. I will take a screenshot with all your happy faces and inspired as well, I know. Ready? Okay. Just a second. Wait. Please don't message because it's popping up on the screenshot. One second. It's okay. Tejaramji is also setting up. Yeah, there is the Manthan family. Let's see. Okay. Ready? And smile. One more. Second page. Yes. Thank you so much, everyone. Thank Thank you. you. Thank you so much. Bye-bye, Thank you. Tejaramji. Bye-bye, Achal, Nisha, and everyone. Thank you so Bye bye. much. Namaste.